हाय आरव। Hi, ma'am. कैसे हो आप? Namaste, ma'am. नमस्ते। And कैसे हो? Take ma'am. Good evening to one and all. I'm Arav Seth, co-founder of We Rise Together Foundation, and I will be your host for the first episode of My First Period, an Instagram Live special by We Rise Together to break the taboo surrounding periods. Through this initiative, we will interview we will interview women and girls about their first period experiences and learn more about menstrual hygiene from them. Did you know that 23 million girls drop out of school annually due to lack of proper menstrual hygiene management facilities? Well, we at We Rise Together Foundation are working to solve this problem through one of our initiatives, that is She Hygiene, wherein we have distributed over 4,000 sanitary pads to underprivileged women and organized awareness sessions during the pandemic. Our guest for today is none other than Ms. Yogita Singh. Ms. Singh is a cognizant media personality who has worked with many media houses, including Sanskar TV, India News, Ishwar TV, and even SAMS, that is Southern Academy for Media Studies. She is also the founder of a chat show, Manthan, where she interviews eminent personalities about their work and life. So, good evening, ma'am. Hope you are doing fine, ma'am. Yeah, I'm perfectly all right. Thank you for having me on your show. Thank you so much, Arav. Thank you, ma'am, for giving us your time. I mean, it is a real pleasure for me to host you today on this Insta Live. And ma'am, as you know, a girl's periods start around the age of 11 to 13 years. And it is a tender age, and often girls seem to be a bit uncomfortable about the subject. So, to end the hesitation around menstruation, would you like to start by sharing what was your first period experience like? Like, was it awkward? Were you prepared for it? And did you know how to deal with it? See, the topic that you have, started with, it's lovely one, but I think we should talk more in Hindi about this because, people who are well versed in English, they are smart enough to handle this situation. But people who are from the rural background, they really don't know how to handle this. So I would love to answer in English so that people from Hindi background can understand this again. Okay. So, अगर आप मेरे पहले पीरियड्स की बात कर रहे हैं तो मुझे आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, मेरा 7th खत्म ही हुआ था एंड मुझे जब पीरियड स्टार्ट हुए तो आई वाज सो अनअवेयर ऑफ इट आई वाजंट गिवन नोबडी एट माय प्लेस टॉक्ड अबाउट इट उस समय वाकई एक टैबू था parents were like they were never open to their children, they were never friendly to their children, explaining them about periods and menstrual hygiene, and we really didn't know what pads mean, what उस समय ना carefree का ad आया करता था and we really didn't know what does it mean. तो जब मुझे पीरियड्स हुए तो आई वाज लाइक ये क्या हो गया, मुझे मुझे कोई बीमारी हो गई है, आई वाज दैट स्केर्ड, उस लेवल का मुझे डर बैठ गया था. एंड आई रश टू माय मदर एंड आई आस्क्ड हर कि मम्मी मुझे कुछ ऐसा हो रहा है और मुझे तो चोट भी नहीं लगी है बट आई एम ब्लीडिंग वेरी हेवीली. तो दैट वाज समथिंग सो अनयूजुअल एंड सो स्केरी फॉर मी. तो मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिस इज नॉर्मल एंड डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. तो आई वाज लाइक सबको होता है क्या? I had so many questions, and the worst part was nobody was there to clarify my doubts. और उस समय ना ये गूगल भी नहीं हुआ करते थे. I'm talking about somewhere in 80s. We didn't have Google to check for the answers. तो मेरे पास गूगल नहीं था. फ्रेंड्स से पूछने में डर लग रहा था, मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो भी हो रहा है वो सिर्फ मुझे हो रहा है और शायद बाकियों को नहीं हो रहा होगा, जबकि शायद मैंने साइंस में पढ़ा होगा 7th स्टैंडर्ड में, छोटा बहुत हिंट पढ़ा होगा मैंने, बट I could not relate it with myself. So it was such a scary incident for me. और मैं आज भी इस बात के लिए बहुत पछताती हूँ कि अगर मुझे उस वक्त इस चीज के बारे में इतना पता होता तो मुझे जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाद में हुई विच आई रियली डिडंट नो अबाउट, कि वो चीजें मुझे हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो वो शायद मैं कंट्रोल कर पाती. तो माइंड वॉज नॉट गुड एक्सपीरियंस, इट वॉज अ नाइटमेयर फॉर मी. और इसी बात को मैंने ध्यान में रखा कि अगर जब मैं बड़ी हुई तो मुझे ये लगा कि अगर किसी लड़की को एजुकेट करना है तो आई एम ऑलवेज द फर्स्ट वन टू टॉक टू गर्ल्स, कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए, शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट, एंड दिस इज समथिंग ऑल द पेरेंट्स शुड डू. और आज के पेरेंट्स ना बहुत अच्छे हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर शेयरिंग. आप देखो, यू आर टॉकिंग टू मी अबाउट दिस एंड we were not supposed to talk about this with our fathers, our brothers, they didn't know about it. तो ये टैबू तो बहुत हटा है अब हो सकता है अभी भी रूरल एरियाज में होगा,
मगर शहरों में फिर भी बहुत हद तक ये कंट्रोल में आ चुका है। आई थिंक जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस बात को अग्री भी करेंगे कि अब पेरेंट्स बात करते हैं इसके बारे में। यस मैम, मतलब आज के मतलब जैसे हम मिडिल क्लास जब है आज जो मिडिल क्लास है उसके बारे में वो सोचने में भी डिफिकल्टी होगी कि पहले हाँ कैसे इतना बड़ा टैबू था अराउंड मेंस्ट्रुएशन, और कि लोग बात भी नहीं करते थे, एंड कितना लिमिटेड कम्युनिकेशन होता था इसके बारे में। एंड आई थिंक आज भी एक हद तक, मतलब भले ही वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है वो टैबू, पर आप देखोगे अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में अभी भी उनको पता नहीं होता सैनिटरी पैड्स क्या होते हैं। एंड जैसे कि हम पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं और तब भी वो हेजिटेट करते हैं इन टेकिंग सैनिटरी पैड्स फ्रॉम अस। तो मैम लाइक व्हाट वुड, एंड मैम आपका एक और पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम जो भी सारे पेरेंट्स होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एजुकेट करते हैं अपने बच्चों को इसके बारे में। और आई थिंक जो पेरेंट्स नहीं करते हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि और अपने हाँ लड़कों को भी बताना चाहिए जिससे कि वो भी इसके बारे में जाने, और वो भी फिर सपोर्ट कर पाए अपने फ्रेंड्स को या सिस्टर्स को इस ड्यूरिंग द पीरियड्स। Ma'am, बिल्कुल so सही बात है। coming to the second question, what would be your advice to girls who are at the onset of puberty? How should they prepare for this first period? देखिए जितनी भी लड़कियां हैं जो प्यूबर्टी में है, पहली बात तो आजकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। नो, टेलीविजन हैव प्लेड अ मेजर रोल इन द काइंड ऑफ अवेयरनेस। अभी तो बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलते हैं, तो लड़कियों को फिर भी पता है। मैं फिर भी उसके बाद भी बोलना चाहूंगी कि लड़कियां अब जानती हैं लेकिन अभी तक सिर्फ सुना है। जब वो स्टेज पे आती है बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनके बॉडी में, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उस हार्मोनल चेंज को आपको एक्सेप्ट करना, है ना। जैसे गुस्सा आना और बहुत सारे मतलब घबराहट होती है कि क्या चीज हो रहा है हमारे साथ, हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, हमारा माइंड हमारी बॉडी के जो चेंजेस है उनको। तो उस समय लड़कियों को ना दे शुड बी वोकल, दे शुड टॉक टू देयर पेरेंट्स। उनसे कहना चाहिए कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है दुनिया में, मुझे लगता है कि हर लड़की को होता है, और ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको पीरियड्स होंगे ओनली देन you can understand that you will be, I mean you can create a new life now, है ना। एक लड़की क्या होती है, शी इज अ क्रिएटर ऑफ लाइफ। अगर वो पीरियड्स उसको होंगे मतलब गॉड हैज गिवन यू ऑल हर ब्लेसिंग्स, आपको ब्लेस कर रखा है भगवान ने कि नाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू लाइफ फॉर योरसेल्फ। तो इसमें शर्माने की, घबराने की, डरने की कोई भी बात नहीं है। जैसे हमें कहा जाता था ना कि किसी को बताना मत, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आपको पता है साउथ में ना दे सेलिब्रेटेड, अगर आप साउथ इंडियन लोगों से मिले होंगे ना, तो वो बकायदा एक इसे त्योहार की तरह मनाते हैं। जब उनकी लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, जब फर्स्ट पीरियड होता है ना, दे इनवाइट पीपल, जैसे शादियों में खर्चा करते हैं ना, वो उस तरह से लोगों को इनवाइट करते हैं अपने घर में। मुझे लगता है कि काश जैसे साउथ में लोग करते हैं वैसे पूरे भारत में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, लोग इस चीज को थोड़ा सा समझें और एक्सेप्टेंस दिखाएं। वहां के बच्चों को मैंने देखा उनकी अपब्रिंगिंग अलग होती है, बिकॉज दे आर वेरी यूज टू दी थिंग्स दैट्स हैपनिंग विद देम। जो उनके बॉडीली चेंजेस होते हैं, their father is knowing about them, brother is knowing about the changes, जो neighbors हैं even they know about the changes। तो लोग कोऑपरेट करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, अगर मैं चिड़चिड़ी हूँ तो nobody will come out to know कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, अरे ये tantrums भी खेलती है, शी इज लाइक दिस, मतलब इस तरह की बातें होती है ना। तो हमें खुश होना चाहिए जो भी लड़की को पीरियड्स होता है, शी शुड बी हैप्पी फॉर दिस कि शी इज रेडी टू क्रिएट अ न्यू लाइफ नाउ। और अब उसे क्या ख्याल रखना है, अब उसको सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि उसे हाइजीन मेंटेन करना है। यू नो, देखिए कपड़ा यूज करना इज नॉट अ बैड थिंग। आई वुड नेवर से कि कपड़ा यूज करना खराब है, क्योंकि बैक देन वी यूज टू यूज क्लोथ्स, यू नो, कॉटन के धुले हुए नए कपड़े यूज टू बी गिवन टू अस। हमें हमें पीरियड्स में सैनिटरी नैपकिन यूज करना है, वो मुझे तब पता चला व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। सेवेंथ के बाद तो वी यूज टू यूज कपड़ा ओनली, लेकिन दैट यूज टू बी वेरी क्लीन, हाइजीनिक, और उसका मटेरियल भी बहुत सूदिंग होता था। तो कपड़ा यूज करना बुरी बात नहीं है, बुरी बात यह है कि गंदे कपड़े इस्तेमाल करना, है ना। देखिए पैड्स क्या होते हैं, पैड्स हेल्प यू कि यू कैन मूव फ्रीली एनीवेयर वेयर एवर यू वांट। कपड़े में आपको थोड़ा सा मतलब वो चिपचिपापन और वैसा फीलिंग आती है। सो इफ यू आर यूजिंग कपड़ा, डोंट वरी अबाउट इट, इट शुड बी क्लीन, है ना। आपको अपनी हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो आप बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जो यूट्रस के इन्फेक्शन होते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, इन सारे इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं पीरियड्स के टाइम, ये पेरेंट्स भी बताएंगे उन बच्चों को। तो अगर वो बच्चे उस डूज एंड डोंट्स को याद रखेंगे ना,
तो उनको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होगा। सबसे पहली चीज, क्लीनलीनेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, बस उतना ध्यान रख ले। पीरियड्स में बहुत अच्छी डाइट लें, बिकॉज डाइट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे देश में अभी भी क्या होता है कि जो लड़के होते हैं ना, जैसे आरव, आपको आपके पेरेंट्स बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाते होंगे ना, बेटा खा, तुझे अच्छी बॉडी बनाना है, तुझे बहुत काम करना है। बेटियों को क्या होता है ना, आजकल ऑफ कोर्स मम्मी डैडी लोग बहुत बदल चुके हैं, क्योंकि मेरी वाली जनरेशन अब मम्मी पापा बनी है ना, तो हमें पता है कि व्हाट वी वर, व्हाई वी वर अंडर प्रिविलेज्ड, हमें हेल्थ इश्यूज क्यों होते हैं, बिकॉज वी वर नेवर केयरिंग, मतलब वी वर केयरलेस अबाउट आवर डाइट, वी डिडंट नो व्हाट टू ईट। एंड अब क्या है, अब हमें पता है कि हमें खाना क्या है ना। बच्चों को, जो लड़कियां अभी मतलब प्यूबर्टी पे आ रही है, उनको डाइट अच्छी देनी है। डोंट गो फॉर डाइटिंग। डाइटिंग किया नहीं कि सेहत खराब। अगर आपकी बॉडी में आयरन कंटेंट नहीं होगा, तो जो ब्लड लॉस का जो प्रक्रिया होती है ना, इट्स अ वेरी विशियस साइकिल। अगर आपके शरीर में खून नहीं है और आपको ब्लड, आपका पीरियड्स हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो ब्लड फ्लो जो है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये एक अजीब सी साइकिल है। ऐसा नहीं कि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको क्या कहते हैं, पीरियड्स कम होंगे, ऐसा नहीं होता, वो उल्टा होता है। हीमोग्लोबिन कम है, बहुत हाई पीरियड्स होंगे, हाई पीरियड्स होंगे तो फिर हीमोग्लोबिन और कम हो जाएगा। तो ये एक विशियस साइकिल है, जो कि अल्टीमेटली आपको हर तरीके से कमजोर कर देगा। तो अपने डाइट का बहुत 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 ख्याल रखिए। जितना आपके भाई खाते हैं ना, उससे डबल खाइए, और सारे आयरन कंटेंट खाइए, सारे फ्रूट्स खाइए। किसी भी चीज को खाने में ना नुकुर बिल्कुल नहीं करना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट एंड हाइजीन एंड एजुकेट अपने आप को जरूर करना है। यस मैम, मैं आपके साथ अग्री करता हूँ। लाइक आपने बोला कि आपके टाइम में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और आज काफी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ चुकी है इस बारे में। तो काफी लोग भले प्रिपेयर रहते हैं, पर उसको एक्सपीरियंस करना एक बहुत अलग बात होती है, क्योंकि काफी सारे हार्मोनल चेंज होते हैं उस टाइम, एंड इरिटेशन होती है। और जैसे आपने बताया कि साउथ में एजुकेट करते हैं अपने बेटों को भी, एक्चुअली सेलिब्रेट करते हैं इसको, तो ये बहुत ही यूनिक चीज है। एंड आई थिंक इट इज अ गिफ्ट बाय नेचर, तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, because as you said, it is like it prepares you for the creation of a new life. या So ये हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और इसके बारे में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए while talking about it. या Yes, बिल्कुल ma'am. सही। And ma'am, we have heard many myths surrounding menstruation. Like, don't enter the temple if you are on your periods. Don't touch the pickle if you are menstruating. So, what message would you like to give to the people who believe in such superstitions? आरफ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, ठीक है? क्योंकि आई टोल्ड यू ना कि मैं थोड़ा सा, आई एम फ्रॉम 70s एंड 80s बैकग्राउंड, तो हमारे टाइम में तो ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल हुआ करता था कि मेरे मायके में नहीं था, मतलब एट माय प्लेस हमें पता ही नहीं था कि मेंस्ट्रुएशन अगर आपको है तो आप पूजा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट गो टू द टेंपल। मुझे नहीं मालूम था, तो हम जाया करते थे। बट व्हेन आई गॉट मैरिड एंड आई केम टू माय इन लॉज हाउस, तो एज यूजुअल आई वाज डूइंग द पूजा। And when my family, my mother-in-law was like, she was aware that I'm down. She was so annoyed on me कि अरे, you should not have been doing puja because this is not allowed. तो मुझे लगा कि why isn't it allowed? तो she said because periods में आप अशुद्ध होते हो, और जब आप अशुद्ध होते हो तो आप मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर में मूर्तियों को नहीं छू सकते, आप अचार नहीं टच कर सकते हो। मेरे लिए बहुत अनयूजुअल था, इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट दिस। बट सिंस मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वी हैव नो ऑप्शंस व्हेन यू नो व्हेन यू गेट मैरिड, और व्हेन यू हैव अ फैमिली। जो लोग इसको बहुत फर्म बिलीवर होते हैं, एक्चुअली हम ना अपने दादा दादी को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वॉट एवर दे हैव बीन फॉलोइंग, उन्होंने अपने समय के हिसाब से हमें ये बात बताई है। देखिए, पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो उनके पास अवेलेबल नहीं थी। दे डिडंट, वो लोग ना 5 दिन 7 दिन जब तक का पीरियड्स का टाइम होता, दे डिडंट टेक बाथ। बिकॉज कहा जाता था कि अगर आप नहीं नहाते हो और आप सिर्फ रेस्ट करते हो, तो आपकी बॉडी जो है ना, जो आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, आपकी बॉडी में जो कमजोरी आ रही है, वो आपकी बॉडी जो है वो रिकवरी टाइम हो जाएगा, एंड यू शुड नॉट टेक बाथ, ऐसे कहा जाता था उस टाइम में, इट अबाउट दी ओल्डन डेज। अब ऐसा नहीं है, अब हम लोग रोज नहाते हैं, है ना, क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हैं। तो आप सोचिए, हम सुबह नहा के ही तो मंदिर जाते हैं ना पूजा करने के लिए। तो अब के टाइम में चीजें अलग हैं। पहले के टाइम में क्योंकि अलाउड ही नहीं था नहाना, और आयुर्वेद के हिसाब से ना ये माना भी जाता है कि आपको जैसे बुखार है, तो वो क्या करते हैं, आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता था जहाँ पे एसी भी नहीं चलता, मतलब एसी तो खैर होता ही नहीं था पहले, पंखा भी नहीं चलाते थे, ताकि आपको बहुत स्वेटिंग हो और आप नेचुरली ठीक हो जाएं। तो दिस वाज अ मतलब वे टू मेक यू हेल्दी, है ना।
अगर मैं उस चीज को आज अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हम ऐसे कॉन्क्रीट घरों में रहते हैं जहाँ पे गर्मी टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है, अब बिना एसी के रह नहीं सकते, तो अब हमारी चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। एग्जैक्टली यही हाल मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी है। पहले के लोग जो कहते थे वो उनके हिसाब से, उनके टाइम के हिसाब से इट वाज परफेक्टली ऑल राइट। आज के टाइम में वी कैन नॉट फॉलो इट। पर वही है ना कि हमारे दादा दादी को हम थोड़ी रोक सकते हैं, वी कैन नॉट आस्क देम ना कि हम तो छुएंगे, फिर हो जाएगा कि बेटा तुम तो बहुत बदतमीज हो, तुम तो हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते, तुम हमारे खानदान की रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करना चाहते। लेकिन हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अब चूंकि हमारे खानदान की ये मान्यताएं रहती हैं, और हमारे धर्म में भी कहा जाता है कि पीरियड्स में आप अशुद्ध हैं, है ना। जबकि अगर आपको पता हो, इफ यू आर अवेयर ऑफ कामाख्या माँ का जो टेम्पल है, कामाख्या माँ में का जो टेम्पल है, वहाँ पे माँ के योनि की ही पूजा की जाती है। और माँ की जब जब पीरियड्स का टाइम आता है तो 3 दिन वो मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं, और वहां से ना लोग पुजारी, वहां के जो खून से सना हुआ कपड़ा होता है ना, इट्स अ मिरेकल जो हमारे भारतवर्ष में होता है, लोग अपने घर में लाके फोल्ड करके उस कपड़े को रखते हैं, ताकि उसे जब हम अपने घर में रखेंगे ना तो हमारे घर में खुशियां रहेंगी, सौभाग्य रहेगा। और सोचिए, हमको क्या कहा जाता है, मत जाइए, मत छुइए। तो ये बहुत, ये बातें हैं पुरानी, पर मैं इन्हें दकियानुसी नहीं कहूंगी, क्योंकि वो अपने समय के लिए वो ठीक कहते थे। आज के टाइम में चीजें बदल चुकी है, अब हम लोग रोज नहाते हैं, है ना, क्लीन रहते हैं, वी यूज पैड्स जिसको कि हम हर थोड़ी देर बाद चेंज कर लेते हैं, तो हम अब बहुत साफ रहते हैं। पर पहले के लोगों को नहीं समझा सकते। और जहां तक आपने अचार की बात की, ये इंसिडेंस मेरे साथ हुआ था और मुझे बहुत डांट पड़ी थी। मम्मी ने अचार रखा था, आई डिडंट नो अबाउट इट, मैंने उसमें से निकाल लिया और खा लिया, और फिर मुझे डांट पड़ी कि तुमने उस अचार को छुआ। मतलब मेरी बदकिस्मती, वो अचार क्यों खराब हुआ मुझे सच में नहीं पता, पर वो अचार खराब हो गया और वो मेरा नाम लग गया कि तुमने वो अचार टच किया था, तो इसलिए वो अचार खराब हो गया। तो वो मेरे साथ एक जुड़ गया, मैंने कहा ओ माय गॉड, आई शुडंट हैव टच्ड इट। ऐसा नहीं है, मैंने अभी भी कई बार चुपके से अचार निकाल के खाती हूँ, वो अचार खराब नहीं होता। पर उस समय वो बड़े मर्तबान में रखा था, आई टुक इट आउट एंड इट इट गॉट स्पॉइल्ड, तो वो मेरा नाम लग गया। तो वो क्या होता है ना, कभी कभी कोई चीज एक्सीडेंटली आपसे हो जाती है और फिर वो मान्यता बन जाती है ना। और अचार पता है क्यों नहीं खाते, खट्टी चीजें खाने से हमारी बॉडी जो है ना, उस टाइम बॉडी की एक्सेप्टेंस नहीं होती है खट्टी चीजों के लिए, उस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ आयरन कंटेंट चाहिए होता है। तो हमारे बड़े बूढ़े क्या कहते थे, असल में वो क्यों कहते हैं मालूम, डराने के लिए कहते हैं, मत खाओ इसे। हम बोलते ना, बेटा घर के बाहर मत निकल, बाबा खड़ा है, बाबा तेरे को उठा लेगा, या भूत है, क्या होता है ये सब, सिर्फ बच्चे को वहां न जाए इसलिए बोला जाता है। तो वही हाल हमारे साथ भी है, हमें कहा गया कि अचार का डब्बा मत छुओ, इसलिए मत छुओ क्योंकि तुम जब खट्टा खाओगे तो वो तुम्हारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। पर इस चीज को लोगों ने समझना नहीं चाहा कि क्यों कहा गया है। लोगों ने बस ये सोच लिया कि अचार खाओगे तो अचार खराब हो जाएगा, और फिर वो एक उन्होंने बना दिया सुपरस्टिशन कि अचार छूना मना है। इट्स नॉट लाइक दैट। अचार खाना इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, वो इम्पोर्टेंट है इस टाइम। बस ये टैबूज हैं, इसे हमें बदलने की जरूरत है। और मैं सच बताऊं तो जो हमारी ये वाली जनरेशन है ना, ये जो अब माँ बने हैं, अगर वो लोग इस चीज को बहुत खुले दिमाग से देखेंगे और खुद टेस्ट करेंगे ना, तो वो इस टैबू को तोड़ देंगे, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। यस मैम, लाइक मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जो सुपरस्टिशंस हैं काफी सारे तो लाइक ऐसे बॉर्न आउट हुए थे, लाइक आउट ऑफ लाइक कि बाय मिस्टेक हो गया, तो फिर वो पूरा नॉर्म बन गया, पूरे सारे जनरेशन थे, और वो उनकी माइंड में एम्बेड हो गया कि ऐसा गलत है, ये बिल्कुल गलत है, तो हाँ फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। पर और जो क्लीनलीनेस का भी आपने बताया, तो वो काफी चेंज हुआ है और तब से आज में आज काफी डिफरेंस है, जो पहले क्लीनलीनेस के मेथड से उनसे और आज में काफी डिफरेंस है। तो आई थिंक हमें टाइम के साथ अपग्रेड भी होना चाहिए, एंड और जो टैबू है, जो अभी अभी भी एक हद तक है अंडर प्रिविलेज सेक्शन में, वो हम ब्रेक कर सकते हैं इसी के थ्रू उनको बता के कि ये सुपरस्टिशन सही नहीं है, और अगर वो इन सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं तो फिर उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगेन वो फिर उनकी वो लिमिटेड बन जाते हैं, एंड फिर हाँ। उनको लगता है वो इम्प्योर है, जबकि आप ही हो जो कि लाइक आपको प्रिपेयर कर रहा है फॉर क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ, तो आप ये कैसे इम्प्योर यस, मान सकते हो? बिल्कुल सही या बात है। कभी भी कोई लड़की इम्प्योर होती ही नहीं है ना। जैसे हाँ लड़के जी। कभी इम्प्योर होते, लड़कियां हो ही नहीं सकती, वो दे आर द क्रिएटर्स ऑफ न्यू लाइफ।
तो वो कैसे इम्प्योर हो सकते हैं? Totally agree with you, ma'am. Ma'am, so what do you think about boys and men? What should they know about menstruation and periods? How do you think they should advocate for menstrual hygiene? देखिए, जो लड़के हैं, अब तो लड़कों को बहुत नॉलेज मिल चुकी है। अब आजकल के लड़कों को सब कुछ पता होता है ना। दे हैव गॉट सो मच लेसन्स फ्रॉम द यूट्यूब ऑल्सो, क्लासेस में भी अच्छे से पढ़ाया जाता है, और अब लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं, तो लोगों को पता है। बस उन्हें एक चीज नहीं पता, और वो है हाउ टू डील विद अ पर्सन हु इज अंडरगोइंग दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। आपको सबको पता होना चाहिए कि जब भी किसी लड़की को पीरियड्स होते हैं, तो हर लड़की के अंदर, चूंकि वो एक हार्मोनल चेंज है, तो बॉडी में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो टेम्परामेंट में या फिर फिजिकली वो थोड़ा सा अपने आप को उस थोड़े से समय के लिए वो वीक महसूस करती है। उस वक्त आपको उसको इमोशनली हेल्प करनी चाहिए, है ना। हम कहते हैं ये क्या लड़कियों की तरह कर रही है, ये क्या लड़कियों जैसा है, ये क्या, ये सब टैंट्रम्स नहीं चलेंगे। यू शुड अंडरस्टैंड कि जो बड़ी चीज बनाने वाला इंसान होता है ना, द क्रिएटर ऑफ लाइफ, तो उस क्रिएशन के टाइम भी थोड़ा सा, जब उसका प्रोसेस चल रहा होता है, उस प्रोसेस के टाइम कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। तो जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो लड़कों को इस चीज को समझना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें अगर किसी लड़की को पीरियड्स हो रहा है, तो वो आपस में बातें करके हंस रहे हैं लड़के। उल्टा भाग के जाओ, उसके लिए पैड्स लाके उसको दो, कि अगर उसको पीरियड्स हो रहे हैं और उसके कपड़े में स्टेन लग चुका है, तो इट्स नथिंग टू बी शेम, आई मीन यू शुड नॉट शेम हर फॉर दिस, है ना। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। कभी आपके साथ ऐसा हो जाए, आप वॉमिट कर दो अपने कपड़े में, खाना खाते हो अपने कपड़ों पे गिरा दो, तो वो तो शेम की बात नहीं होती ना। तो वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें कई बार लड़कियों को भी नहीं पता होता, उनकी डेट्स आगे पीछे होती है, इवन दे आर नॉट अवेयर कि उन्हें पीरियड्स कब होंगे। तो उनका मजाक नहीं उड़ाइए, आप उनको सपोर्ट कीजिए। तो स्टैंड लाइक अ सपोर्ट सिस्टम, घर पे, ऑफिस में, स्कूल में। When you come to know that somebody is down, उसके लिए ना अच्छा खाना लेकर जाइए। जो अपने साथ एप्पल लेकर आए, उसको एप्पल ऑफर करो, हैव दिस एप्पल, यू विल फील बेटर। उसको उसको जूस पिलाओ, गिव हर लिक्विड डाइट। अगर आप लोग उसके साथ हो, तो शी विल टेक केयर ऑफ दीज 3-4 days वेरी नाइसली, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इतना है कि उसको थोड़ा सा आप समझिए। बस लड़कों से हम पता है क्या चाहते हैं, जस्ट अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमें कुछ नहीं चाहिए, तो आप लोग हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते, यू कैन नॉट हेल्प अस एट ऑल, है ना। हमें अपने सारे क्योर्स खुद ही करने हैं। पर हमें क्या चाहिए होता है कि सामने वाला जो है, वो सिर्फ हमें समझे कि जिस पीरियड के थ्रू हम गुजर रहे हैं, जो समय से हमारा चल रहा है, उसमें बस स्टैंड बिसाइड अस, दैट्स जस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स। आप लोग और कुछ कर भी नहीं सकते ना। Yes, ma'am. I mean, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमें पीरियड्स के वक्त लड़कों को और मेन को लेकिन इमोशनल सपोर्ट बनना चाहिए, जिससे कि एंड अंडरस्टैंड करना चाहिए उनकी सिचुएशन, बिकॉज वो तब एक काफी पेनफुल फेस के थ्रू गुजर रहे होते हैं, एंड वो इरिटेट हो जाते हैं। तो फिर वो अंडरस्टैंड करना चाहिए और उनको इमोशनल सपोर्ट बनना चाहिए। एंड आई थिंक मैंने भी इससे काफी सीखा है कि मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ अगर कोई पीरियड्स करे। एंड आई थिंक काफी सारे लड़के और जो मैन है वो जो कि इसको देख रहे हैं, आई थिंक उन्होंने भी काफी कुछ सीखा होगा कि वो अपने पार्टनर या अपने सिबलिंग या अपने फ्रेंड के साथ कैसे उनके इमोशनल सपोर्ट बन सकते हैं, एंड कैसे उनको समझ सकते हैं। बिल्कुल। आरव, मेरा बेटा जो है ना, आई जस्ट टेक योर मिनट। मेरा बेटा जो है, व्हेन ही वाज 11 years old, तो मुझे समझ में आ गया था कि ये वो टाइम है, आई नीड टू टेल हिम अबाउट दिस। मैंने उसे बताया। और आज टाइम ये है कि अगर मुझे पीरियड्स होते हैं, और कभी जब मैं, जैसे मैं थोड़ा सा, मेरा मन खराब होता है और मैं थोड़ा सा कभी गुस्से में बोल देती हूँ, एज आई टोल्ड यू कि ये हर किसी के साथ हो जाता है। तो ही वॉज वेरी क्यूट जब वो छोटा था, एंड ही यूज्ड टू से, मॉम आपको पीरियड्स हो रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हो। एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, मतलब मैं अब गुस्सा भी नहीं कर सकती। अगर मतलब बिना उसके भी कभी गुस्सा कर दो, तो ही यूज्ड टू फील कि मम्मा को शायद पीरियड्स हो रहे हैं, इसलिए मम्मा इरिटेट हो रही है। एंड ही हैज ऑलवेज स्टूड बाय माय साइड। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि वो इस चीज को समझता है। उसके क्लास में भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है कि गर्ल्स वॉक अप टू हिम एंड टॉक टू हिम अबाउट इट। उसके किसी फ्रेंड को यूट्रस में शायद कोई प्रॉब्लम थी, आई रियली फॉरगॉटन, कुछ उसको प्रॉब्लम थी, एंड ही वाज सो वोकल, ही केम अप टू मी, मॉम मेरी फ्रेंड जो है ना, वो मुझे कह रही थी कि उसको ऐसी प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आई हेल्प हिम आउट। तो मुझे लगता है कि बच्चे, और मतलब स्पेशली माँ को ना, अपने बेटों को एजुकेट करना चाहिए। अगर आपने अपना बेटा पढ़ा दिया ना,
तो बेटियों को कभी दिक्कत नहीं होगी। दैट इज व्हाट इज सो रिक्वायर्ड। टोटली अग्री विद यू मैम। और हाँ, बहुत ही आपने बहुत क्यूट एक्सपीरियंस बताया, लाइक कैसे इमोशनल सपोर्ट बनना चाहिए। एंड एंड आई थिंक हम सब ने काफी कुछ सीखा आपके आंसर से। So ma'am, like sometimes when a girl faces problems during their periods or feels something unusual, they are hesitant to share their problems with their family members or friends. So how can we create an atmosphere where they feel open and safe to share their period problems? देखो ऐसा है ना कि अभी जो टाइम है ना, ओपननेस है, अभी लोग बात करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि अगर मेरे घर में मेरे बेटे को पता है कि अगर मम्मा चिड़चिड़ी हो रही है, क्रैंकी हो रही है, तो कुछ प्रॉब्लम है ना। तो अभी की फैमिलीज फिर भी बहुत अच्छी है। अभी की मेरे मतलब आई हैव सीन पीपल टॉकिंग अबाउट इट। तो घर के अंदर एक माहौल होना चाहिए, पेरेंट्स को ना इस मामले में ओपन होना चाहिए। और अगर लड़की को कोई भी प्रॉब्लम है, आजकल पता है मैंने एक नया ट्रेंड देखा है, वो क्या करते हैं, दे मेक रेड सर्कल अपने हाथ में बना लेते हैं, जस्ट टू शो कि आई एम हैविंग पीरियड्स। तो लड़कों को भी समझ में आ जाएगा कि शी इज हैविंग पीरियड्स, सो दे विल बी फ्रेंडली एंड हैप्पी। लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं, है ना। People they try to make fun of all this. Why do you try to showcase this? If you are down, you need not tell everybody that you are down. It's not about telling everybody, है ना। It's not about gaining sympathy from people. It's only to tell that ये वाली जो मेरी आज अभी की सिचुएशन चल रही है, अभी थोड़ा सा मेरा क्रिएटिव प्रोसेस चल रहा है, मेरी बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस चल रही है। तो इस वक्त थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग इमोशनली खड़े हो जाइए। दैट्स इट। तो फैमिली को भी इस चीज को समझना पड़ेगा, वो कम से कम इस चीज को समझे कि आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो शर्म की बात नहीं है ना। पेरेंट्स अगर पापा भाई उसको ये पता चल जाए कि अब मेरी बहन को या मेरी बेटी को पीरियड्स हो रहे हैं, तो ये शर्माने की बात नहीं है, छुपाने की बात नहीं है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे घर में बाकी की बीमारियां होती है ना, वो ये तो बीमारी भी नहीं है, उल्टा पीरियड्स तो बीमारी भी नहीं है, अगर पीरियड्स ना हो तो बीमारी है ना। तो ये इस चीज को बस पूरी फैमिली समझे कि अगर ये पीरियड्स हो रहे हैं तो हाउ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, हाउ टू टेक केयर ऑफ द डॉटर, है ना। बस इतना करना है फैमिली को कि उसका ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, खुल के रहना है। कोई जरूरी नहीं है कि हम सुबह शाम पीरियड्स के बारे में बात करेंगे तो ही हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, नहीं। जब प्रॉब्लम है, जब पीरियड्स हो रहे हैं, बस उस समय इमोशनली ख्याल रखिए, दैट्स इट। देखिए हमारे घरों में तो फिर भी बातें हो जाती हैं, प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, जैसे आप जहां जाकर के आप पैच बांटते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां आती है। वहां आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बेटी और माँ के बीच में ये बात धीरे धीरे कानों में होती है, इशारों में बात होती है कि पीरियड्स हो रहे हैं। और अगर घर में, कई घरों में तो मैंने ऐसा भी देखा है कि किचन में जाना अलाउड नहीं है, यू कैन नॉट गो इन द किचन, यू कैन नॉट टच द यूटेंसिल्स ऑल्सो, ये सारी भी चीजें होती हैं। और उसमें क्या होता है, छुआछूत वाली प्रॉब्लम होती है, मतलब फीलिंग्स ऐसी आती है जैसे कि हम अछूत हो गए, अछूत कन्या बना दिया जाता है। तो इस चीज से बाहर निकालने के लिए सबसे ज्यादा ना, जो वो वाला तबका है जो अभी तक इस बात को नहीं समझ पा रहा है, उनको एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं ना, उनको तो सबको पता है, वो सब बहुत बदल चुके हैं, बहुत स्मार्ट हैं कि कैसे हैंडल करना है। लेकिन वो फैमिलीज अभी भी बहुत जरूरी है। आपको आरव, मुझे पता है बहुत काम करना पड़ेगा अभी उन बच्चों के साथ, उन फैमिलीज के साथ, उनको एजुकेट करने में, उनको तैयार करना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि जो बहुत अप मतलब अप फैमिली है, उनको तो ज्यादा बताना भी नहीं पड़ता, वो बहुत कैजुअली लेते हैं इस बात को। यस मैम, आपने सही कहा। लाइक तब से काफी ज्यादा बदल गया है टाइम। और आज स्पेशली मिडिल क्लास और अपर क्लास में तो एटलीस्ट काफी ज्यादा ओपननेस है इसके बारे में। बट दी प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम जैसे मैं आपने हमें इसी क्वेश्चन पर आ रहा था कि जब हम सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तो काफी सारा एक टैबू उनके माइंड में होता है। वो घबराती हैं पैड लेने से, स्पेशली फ्रॉम आवर मेल वॉलंटियर्स। जैसे कि एक बार ऐसा हुआ था कि हम एक गर्ल्स ऑर्फनेज गए थे और वहां पर हम सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे। एंड वहां पर हमारे मेल वॉलंटियर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था पैड्स देने से, बिकॉज दे बिलीव्ड कि वो उन लड़कियों को अनकंफर्टेबल बना देगा। सो ओह। वो मतलब हमने फिर भी दिए, हमारे फीमेल वॉलंटियर्स ने फिर भी जाकर दिए। पर फिर हमें लगा कि हमें इसके बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी है। एंड फिर ऐसे ही आई थिंक टैबू ब्रेक डाउन होगा। और ऐसे ही वो ओपन हो पाएंगे इसके बारे में। क्योंकि हम सबको तो पता है यहाँ पर जो मेन थिंग है, जो डिप्राइव सेक्शन है सोसाइटी का, उसको एजुकेट करना बहुत जरूरी है।
और अगर वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में नहीं जानते, तो फिर उनको लाइक आपने जैसे बताया उनकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ सही नहीं रहेगी, और फिर वो कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएंगे सोसाइटी में इन अ बेटर वे, उनके एजुकेशन पर भी इफेक्ट आएगा, बिल्कुल और उनकी हेल्थ पर तो इफेक्ट आएगा ही आएगा, तो फिर वो बिल्कुल ठीक। ठीक से कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएंगे सोसाइटी में। हम तो आपको क्या लगता है कि ये लाइक द टैबू सराउंडिंग पीरियड्स, क्या वो मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, ये टैबू की वजह से ही है। क्योंकि देखिए जैसे आपने बताया कि आप जाते हैं ऐसी जगहों पे, तो वहां पे लोग आपको रिस्ट्रिक्ट करते होंगे कि नहीं लड़के नहीं लड़कियां ही बांटे तो ठीक है ना, ये बहुत नॉर्मल है, ये यूजुअली होता है। आप देखिए ना, आज भी आप केमिस्ट शॉप पे जाते हैं तो उसे मतलब ब्राउन पेपर में रैप करके ब्लैक पन्नी में डाल के, जैसे कि मैं मछली लेने गई हूँ है ना, इट्स ऑल लाइक जैसे मैं नॉन वेज लेने गई हूँ, ब्लैक पन्नी में लगा करके वो इस तरह से छुपा करके देते हैं। व्हाई टू फील शाई अबाउट इट? मतलब अब तो फिर भी मॉल कल्चर में जो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस खुले हुए हैं, इनमें तो फिर भी ऐसे रैक्स पे रखे होते हैं, यू कैन गो एंड पिक इट ऑन योर ओन। लेकिन अगर आप अभी भी केमिस्ट शॉप पे जाएं तो आपको वो यूं उठा के हाथ में नहीं पकड़ाएंगे, और आप आज भी हाथ में यूं लेकर के मार्केट से घर नहीं आ सकते। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन घरों की बात हो रही है जो कि मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये हर जगह है। केमिस्ट के पास जाने वाला मतलब हर हर व्यक्ति होता है, और उनके साथ भी यही जो रवैया है ना अपनाया जाता है। यहाँ पे ये सोचने की बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले तो ये जान लें कि पैड्स जो है वो सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना बहुत मुश्किल है। और जिन लोगों के पास वो क्लीन कपड़े भी नहीं है, उनके लिए अगर आप ये बांट रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई स्टिल रिमेम्बर हमारे स्कूल में एक बार सेक्स एजुकेशन की क्लासेस चल रही थी, उसके बाद हम लोगों को देवर डिस्ट्रीब्यूटिंग पैड्स, और हमारा हाथ उठ नहीं रहा था वो उठाने के लिए, लेने के लिए। वी वर सो शाई, वी वर सो शाई। मुझे याद आ रहा है अभी भी कि हम उस वक्त इतना घबराते थे कि यार पैड्स कैसे उठा लें हम, वो तो मतलब शर्म की बात है। लेकिन आज चीजें बदल चुकी हैं, आज इतनी एजुकेशन है, लोगों को सब कुछ पता है, और अब हमें पता है कि ये हाइजीन हमारे लिए है। जो चीज हमारे लिए है, जब हम अपने मेकअप के लिए सामान खरीद सकते हैं, तो वो हमारी बॉडी को क्लीन रखने के लिए सामान है। तो यू नीड टू पिक इट अप, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। और वो आपको सिर्फ आपको आपका एक सामान नहीं है, वो आपकी हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये एजुकेशन आपको देना पड़ेगा, यू हैव टू गो। मतलब अगर हम सोच रहे हैं ना कि एक दिन में ये चीज खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म होगी, इसमें टाइम लगेगा। जैसे हमारी सोसाइटी को बदलने में वक्त लगा ना, तो अभी उस सोसाइटी को भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसमें भी जब जब अब वो वाली अभी वाली जो जनरेशन है ना, वो अगर एजुकेटेड हो जाएगी ना, तो वो अपने आने वाले टाइम के बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, और उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में समझाएगी, और इसको टैबू की तरफ बिल्कुल नहीं लेगी। डोंट वरी, वो भी हाँ जी बदलेगा। हाँ। हाँ जी। यू आर डूइंग अ गुड वर्क, तो वो जरूर बदलेगा। थैंक यू मैम। हाँ मैम, हम बहुत लाइक भले ही हम काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब हमने काफी टाबू हटाया भी है अपने अवेयरनेस सेशंस के थ्रू, जो कि उनके मन में था। एंड अब वो लाइक ओपन है सैनिटरी पैड्स, वो हेजिटेट नहीं होती सैनिटरी पैड्स लेने में हमसे, एंड वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकती है और फैमिली के साथ भी डिस्कस कर सकती है अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। तो एक हमारे बहुत बड़ा अचीवमेंट है वी रेस्ट टुगेदर का। बट अगर हमें लाइक पूरे इंडिया में सॉल्व करना है ऐसी प्रॉब्लम, तो हमें ऐसी काफी हजारों ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होंगे इस काम को करने के लिए, और हाँ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये टैबू काफी काफी जनरेशन से चलता आ रहा है, एंड इट इज एम्बेडेड इन द माइंड ऑफ दोज पीपल, ऑफ डिप्राइव्ड पीपल। तो फिर उसके लिए हमें उनको एजुकेट करना पड़ेगा, और बार बार हमें पेशेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने बिल्कुल ट्रायल्स में। बिल्कुल मैम बिल्कुल तो सही कह रहे हो। आपके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी ऑडियंस को अबाउट पीरियड्स? मैंने तो वैसे कोशिश की है कि पूरे थ्रू आउट मैं लोगों को मैसेज दूं, और मुझे लगता है कि मैसेज से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आ रहा है कि जो काम आप कर रहे हो दैट इज रियली कमेंडेबल। और मैं उसे सच में बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, जब भी मैं आपकी पोस्ट देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बस दुख ये लगता है कि इतना अच्छा काम आप कर रहे हो और लोग उसको नोटिस नहीं करते। दिस इज रियली बैड कि लोग उस चीज को ना एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, जिस तरह का काम आप कर रहे हैं। और आप इस चीज को करते रहिए। और देखिए, आप देखते हो सेलिब्रिटीज आते हैं शोज में, और वो जब बात करते हैं सैनिटरी नैपकिन के बारे में, तो लोग कितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं, है ना। लेकिन वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सा हॉल लेते हैं, मतलब इट्स एन ऑडिटोरियम, वहां पे वो दिखाते हैं। आप प्रिविलेज लोगों को वो चीजें दिखा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको चेंज लाना है तो गो टू दी पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज, जिन्हें इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है,
उनके पास जाकर के आप इस ज्ञान को दीजिए, आप उसको नॉलेज दीजिए. ओनली देन थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. एंड आरव, यू आर रियली डूइंग अ लवली जॉब. आप लोगों के बीच में जाके लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. एंड आई जस्ट विश कि आपकी जो ये कोशिश है इसमें आप जरूर कामयाब हो. और मुझे लगता नहीं है कि मैं कोई ऐसा मैसेज दे पाऊंगी आरव. जो आप काम कर रहे हो, जो आपका एक्शन है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस और वर्ड्स, तो वही आप कर रहे हो. मैं तो सिर्फ इतना ही कह पाऊंगी कि आरव, कीप डूइंग दिस लवली वर्क. इसकी ही जरूरत है. मैं तो बाकी लोगों को, अगर मेरी आवाज ज्यादा दूर तक पहुंच पाए, तो मैं उन सबको यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आरव काम कर रहा है, लोगों को इस चीज को समझना है कि एक छोटे छोटे कदम भी चल करके ना हम बहुत लंबी दूरी को तय कर सकते हैं. उस लंबी दूरी को तय करने के लिए पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है, विच आरव हैज ऑलरेडी टेकन. और लड़कियां भी अगर इस चीज को समझ जाएं कि ये कोई टैबू नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, दे कैन डिस्कस. असल में प्रॉब्लम पता है क्या आरव? माहौल नहीं मिलता है बात करने का, है ना. लोग ना बात करने में कतराते सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें माहौल नहीं मिलता है. हम मतलब 21st सेंचुरी में हैं, हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, उसके बाद आज भी हम लड़कियों के लिए ना बहुत सारे टैबूज बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड है. कई प्लेटफॉर्म्स पे हम बात नहीं कर सकते, अपने दिल की बात बोलने के लिए हम अलाउड नहीं है. ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात हम लड़कियों के साथ है. पर चेंजेस तो आ ही रहे हैं और ये आएंगे. और मुझे लगता है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर भी अब मुझे लगता है बहुत चीजें बदलेंगी. जब आरव जैसे बच्चे जुड़ गए हैं तो आई नो एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज. और आई सैल्यूट योर पेरेंट्स फॉर दिस आरव. अपने मम्मी और पापा को मेरी तरफ से नमस्ते बोलना, प्रणाम बोलना और थैंक यू बोलना कि उन्होंने आपको इतना अच्छा बच्चा बनाया. आई एम सो प्राउड टू नो यू. Thank you, ma'am. Like it really means a lot to us. And uh, मैं क्या ही कहूँ, like I'm speechless right now for the appreciation and really Yeah, you have really done I good. yes, ma'am. Thank you for it, and thank you for sharing your invaluable experience with us today, ma'am. Like I'm sure we have taken a step forward towards breaking the taboo surrounding menstruation through this episode of My First Period. VLATS Together is continuously working hard towards ensuring safe menstrual hygiene for all. So support us in our cause by donating through the details in the caption. If you want to volunteer in the organization or collaborate with us, you can DM this account and we will reach back to you as soon as possible. Thank you for watching today's episode of My First Period. See you in the next one. Till then, namaste. Thank you, ma'am. Namaste. Take care. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you.